the expression for Fourier series is given by f of t is equivalent to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos of n omega t, where n represents the harmonic, and plus bn sine of n omega t, where this sign represents the odd harmonics of the Fourier series. Now we can calculate a naught, and a naught is, this is DC component or also known as average value. So how we can define average value of this signal? We can define average value of this signal by a naught is equivalent to 1 by t integral over 0 to t f of t into dt, or function is, if your function is you are taking xt, the periodic function is xt, then I can say this is 1 by t integral over a period x of t into dt. So this is expression for average value of a signal. It's the area under the curve divided by total time period of the signal. So I can say the value of a naught is very clear. It's a 1 by t integral of ft dt. It's the average value. Now I am interested in an, the calculation for an. So I can say f of t is given by, I can write the values here. So value of a naught is equivalent to 1 over t integral of 0 to t ft into dt. मैं आपको कुछ फूरियर सीरीज कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, so that we can have understanding for these formulas. Now I am interested in an. So it is a0 plus summation n equal to 1 to infinite. This is an cos of n omega t plus bn sine of n omega t. This is my function. Now I am interested in an. तो ध्यान रखें an का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, लेट्स सी. Just multiply this ft by cos of n omega t and integrate this from 0 to t dt. So this will be what? A naught cosine of n omega t integral of 0 to t dt plus, I can multiply in this. This is summation n equal to 1 to infinite. It is an इंटीग्रल ऑफ 0 टू t, है ना. इंटीग्रल को डायरेक्ट अंदर ले लिया तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ n ओमेगा t इंटू dt प्लस आई कैन राइट bn इंटीग्रल ऑफ 0 टू t कोसाइन ऑफ n ओमेगा t इंटू साइन ऑफ n ओमेगा t इंटू dt. जस्ट मल्टीप्लाई, है ना. I can say this term I can write here. It's a bn 0 to t sine of n omega t into cosine of n omega t into dt. So fine. This is how we can calculate the value of a naught, and this term will become, okay, for the complete one period the integral of cosine will become 0.
द इंटीग्रल ऑफ साइन इंटू कोसाइन, तो इसमें भी एक साइन टर्म बनेगी, एक दोनों साइन टर्म बनेगी, उनका भी एरिया कितना होता है 0. So what you are left with? You are left with this. And what is cos square of theta? I can say 2 cos square of theta minus 1 equal to cos 2 theta. So I can say cos square theta, I can write 1 plus cos 2 theta divided by 2. So it's very simple to calculate this. Now we can calculate the value of an. It's a 0 to t ft into cosine of n omega t into dt can be written as summation n equal to 1 to infinite, this is an into 1 minus cos of 2 ओमेगा टी, जो भी एंगल था उसको डबल कर दिया, इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटीग्रल ऑफ दिस फ्रॉम 0 टू t इंटू डी टी. दिस इज फाइन. कैन आई से इंटीग्रल ऑफ दिस नंबर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 0? और इस नंबर का अगर इंटीग्रल रहता तो फिर इस समेशन साइन का भी कोई मीनिंग नहीं है. सो आई कैन से दिस इज 0 टू t f of t into cosine of n omega t into dt, है ना. यहां अगर n का वैल्यू हट गया तो ये an तो कांस्टेंट है, तो आई कैन से दिस इज an by 2 integral of 0 to t dt. So I can say 0 to t dt, I can write it's a t. So what is value of an? The value of an will be, मल्टीप्लाई कर दें इसका इधर, इट्स 2 बाई टी इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एफ टी इंटू कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी. What we are trying? We are trying for coefficient of Fourier series. So I can write the value of a naught will be 2 by t integral of 0 to t ft into cosine of n omega t into dt. And likewise I can calculate the coefficient for bn, है ना, the value of bn, coefficient of odd harmonic. So I can go for odd harmonic also, and what it says that f of t is equivalent to a naught plus summation n equal to 1 to infinite an cosine of n omega t plus bn sine of n omega t. So I can say to find the value of bn, just multiply ft by sine of n omega t. तो ध्यान रखें कि जब bn का कोफिशिएंट निकालूंगा तो ft में साइन का मल्टीप्लाई होगा, जब an का निकालूंगा तो cos का मल्टीप्लाई होगा. इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, है ना. कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है. दिस इज इक्विवेलेंट टू a naught sine of n omega t into dt plus summation n equal to 1 to infinite an sine of n omega t into cosine of n omega t, this integral from 0 to t into dt. And we are having one more integral which is 0 to t, it's a bn sine square of n omega t into dt. So you can write, है ना, summation
द समेशन इज फॉर ऑल दिस, दोनों के लिए है वो, है ना. नाउ व्हाट आई कैन से 1 minus 2 sin square of theta equal to cos 2 theta. So I can say 1 minus cos 2 theta divided by 2 equal to sin square of theta. This is the idea. So I can say this value is 0 from the previous logic, that the value of integral from 0 to t will be 0. The value of 0, this function is also 0. To sin a cos a is sin 2a. Sin 2a in one period is equivalent to 0. And यहाँ पे क्या cos 2 n omega t 0, तो कितना बचा 1 by 2. So I can write this as a bn into t by 2 is equivalent to what? Is equivalent to integral of 0 to t ft into sine of n omega t into dt. So I can write the value of bn as 2 by t integral of 0 to t ft into sine of n omega t into dt. So we are having all values. The value of, this is value of an, and value of bn is given by 0 to t f of t into sine of n omega t into dt. ये मेरे पास तीन कोफिशिएंट आए हैं, an, bn एंड a0. तीनों की वैल्यू हमको अब पता चल गई है. और ध्यान रखें, जिनको कंफ्यूजन होता है कि सर यहां भी हमारे एक्सप्रेशन में 2 आता है, तो आप क्या करें, यहां 2 लगा दे तो फिर वैल्यू आपको किसकी मिलेगी, a by 2 को, तो यहां पे a by 2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस आर सेम थिंग. So this is the idea of Fourier series. I can say Fourier series having this coefficient, and what Fourier series is, I can say the Fourier series is f of t equal to a naught summation n equal to 1 to infinite an cosine of n omega t plus bn sine of n omega t. This is the idea for Fourier series. और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा फंक्शन इवन है, इफ ft is even function, then I can say ft will be, the Fourier series will be a naught plus summation n equal to 1 to infinite an cos of n omega t. केवल कौन से कोफिशिएंट फाइनाइट आएंगे, ऑड हार्मोनिक्स के कोफिशिएंट फाइनाइट आएंगे, इवन आर 0. इफ ft इज ऑड, अगर ft मेरे पास ऑड फंक्शन है तो आई कैन से, है ना, ए नॉट के बारे में कमेंट नहीं करता, वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऑड है तो ये फंक्शन भी कैसा है, इवन है, दिस मस्ट बी 0. बट ओके, इफ आई कैन राइट, इफ ft इज ऑड, आई कैन राइट दिस इज summation n equal to 1 to infinite bn sine of n into omega into t is the Fourier series, है ना. a0 कैसा होगा फॉर ऑड फंक्शन, आई कैन से दिस इज a0 का वैल्यू कितना, फॉर ऑड फंक्शन द वैल्यू ऑफ a0 मस्ट बी 0. और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप a0 निकाल लो, ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सो डोंट वरी फॉर दिस. तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन से मुझे ये तो समझ में आया कि आई कैन कैलकुलेट द फूरियर सीरीज. बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, लेकिन पहले कुछ फूरियर सीरीज कैलकुलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फूरियर सीरीज क्या मैसेज कन्वे करती है. सो एक फूरियर सीरीज मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको कि लेट्स से अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन f of t is given as summation minus infinite to infinite del of t minus n into ts. क्या दिया हुआ है आपको,
दिस फंक्शन इज नोन एज इंपल्स ट्रेन, इसका नाम है फंक्शन का this is impulse train. So how I can write it when n is equivalent to 0? I can say f of t is sum of this del t, then f of n equal to 1, so this is del of t minus nts plus del of t minus 2 times of nts, and this goes up to infinite. फिर क्या करेंगे, फिर I can select the value of n as negative, so this is plus del of t plus this goes up to plus infinite, है ना. इनफाइनाइट टर्म की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट वैल्यू की बात नहीं कर रहे. ये मेरे पास कोई फंक्शन है. अभी इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कब फूरियर सीरीज निकाला जा सकता है, कब नहीं निकाला जा सकता, वो सारी बातें करेंगे. बट टू यूज टू द फॉर्मूला मैं कुछ फूरियर सीरीज लिखने की कोशिश करता हूं. तो ये मेरे पास एक फंक्शन है. ऑफ कोर्स दिस फंक्शन इज पीरियोडिक बिकॉज इफ आई ड्रॉ एफ टी, इट इज हैविंग वन इंपल्स एट टी इक्वल टू 0, वन इंपल्स एट टी इक्वल टू टी एस, वन इंपल्स एट टी इक्वल टू 2ts, and this goes up to infinite. One impulse we are having t equal to minus ts, one impulse we can have at t equal to minus 2ts, and this also goes up to minus infinite. तो I can say this function is periodic क्योंकि अपने आप को ts इंटरवल के बाद रिपीट करता है. So this function is periodic, और अकॉर्डिंग टू द फूरियर किसी भी पीरियडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के टर्म में बता सकते हैं. चलो हमको क्या करना है, फूरियर सीरीज के लिए किसी वन टाइम इंटरवल के लिए फंक्शन ले लिया जाए. तो मैं इसको ले लेता हूं, ऑल फंक्शंस आर सेम, सो आई कैन से आई हैव दिस फंक्शन, दिस इज डेल्टा टी, किस इंटरवल के बीच में, माइनस टी एस बाई टू टू प्लस टी एस बाई टू. बहुत अच्छे. एंड वी नो दैट delta of minus t is equivalent to delta t. This function is what? Even function. कौन सा फंक्शन है? डेल्टा t एक इवन फंक्शन है. सो व्हाट इज फूरियर सीरीज? ऑड टर्म सारी 0 हो जाएगी, फूरियर सीरीज का वैल्यू हुआ इतना, है ना. फॉर इवन फंक्शन दिस इज द फूरियर सीरीज. व्हाट इज वैल्यू ऑफ a नॉट? a नॉट इज 1 बाई टी एस इंटीग्रल ऑफ माइनस टी एस बाई टू टू ts बाई 2. आप किसी भी फंक्शन को ले सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन को आप अलग कर लो ताकि आपको समझ में आए कैलकुलेशन एक के लिए ही करना है, क्योंकि बाकी तो रिपीटेड है. इनटू डेल्टा टी इंटू डी टी. बताओ इसका वैल्यू कितना आया? आई कैन से द वैल्यू इज 1 बाई टी एस बिकॉज इन माइनस टी एस बाई टू टू प्लस टी एस बाई टू द एरिया अंडर द कर्व इज 1, सो इट इज 1 बाई टी एस. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन एन, सो आई कैन से दिस इज 2 बाई टी एस integral of minus ts by 2 to plus ts by 2. What I can write? I can write ft, which is del t into cosine of n into omega into t into dt. इन दोनों का प्रोडक्ट कब वैलिड होगा? ओनली t इक्वल टू 0 पे, और t को 0 किया तो आंसर कितना आ जाएगा? If I put t equal to 0, this cos 0 will be 1. So this is minus ts by 2 to plus ts by 2, delta t into dt is also 1. तो यहां an का वैल्यू आया 1 और bn का a0 का वैल्यू भी कितना आया है? 1 by ts, और bn का वैल्यू आया है 2 by ts. अच्छा, अगर मैं bn का वैल्यू निकालूंगा तो इंटू साइन, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0. सो उसका कोई मतलब नहीं है. तो मेरे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है. I have all the values for the Fourier series, that for this impulse train an equal to 2 by ts, a0 is equivalent to 1 by ts, and bn is equivalent to 0. तो लिख देते हैं Fourier series. कैसा होगा Fourier series? I can say the Fourier series expansion will be this: f of t is equivalent to
एफ ऑफ टी इज इक्वलेंट टू ए नॉट प्लस ए वन कॉस ऑफ एन का वैल्यू 1 तो ओमेगा टी है ना, प्लस ए टू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। देखो आपको हार्मोनिक में लेंगे 1 2 प्लस कॉस ऑफ A3 cos of 3 into omega of t and this goes up to infinite। चलो ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। अच्छा यहां ओमेगा का मतलब क्या समझे, ओमेगा मतलब ओमेगा एस है ना, 1 by ts इक्वल टू एफ एस एंड 2 पाई एफ एस इक्वल टू ओमेगा एस, तो वही ओमेगा एस है जो इसका फंडामेंटल पीरियड था। So I can say this is a naught is 1 by ts plus an का वैल्यू देखो, an का वैल्यू 1 2 3 4 5, n का वैल्यू कुछ भी रखूं n पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो 2 by ts है, तो मैं सारा कॉमन ले लेता हूं, दिस इज 2 by ts इंटू cos ऑफ ओमेगा एस टी प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा एस इंटू टी प्लस cos ऑफ 3 into omega into s into t and this goes up to infinite। Or I can say what is omega s? We know that 2 pi f of s equal to omega s, so we can write 2 pi by ts equal to omega s। So I can write f of t as 1 by ts plus 2 by ts plus cos of 2 pi by ts into t plus cos of 4 pi by ts into t plus cos of 6 pi by t divided by ts and this goes up to infinite, है ना। अगर ओमेगा एस का वैल्यू 1 है तो 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन पर सेकेंड 4 रेडियन पर सेकेंड अप टू इनफाइनाइट रेडियन पर सेकेंड के कंपोनेंट्स का जो वैल्यू है ये क्या बताता है, देखो वेटेज बताता है कि अगर आपका ओमेगा एस का वैल्यू मैंने 1 लिया तो ये बोलेगा कि इस फंक्शन को बनाने में 1 रेडियन पर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 बाई टी एस, 2 रेडियन पर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 बाई टी एस, 3 रेडियन पर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 बाई टी एस, 0 रेडियन पर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 बाई टी एस। तो ये बताता है आपको वेटेज, है ना। और इसीलिए आइडियल इंपल्स हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट तक के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी को सम करूंगा तो ही मुझे मिलेगा, और प्रैक्टिकली यू कैन नॉट हैव ए साइनसॉइडल सोर्स ऑफ इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट हैव दिस टाइप ऑफ सिग्नल इन लेबोरेटरी, है ना। आपके पास कैसा मिलेगा सिग्नल, इंपल्स ऐसा कुछ मिलता है। तो इंपल्स ऐसा सिग्नल है जो जीरो टाइम में जीरो से किसी हाइट पे पहुंच जाता है, दिस मीन्स उसके फॉर्मेशन में सारी कंपोनेंट सेम होंगे। जैसे मैंने बोला कि मुझे किसी डिस्टेंस को जीरो टाइम में ट्रेवल करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी के 0 टू जो उसकी स्पीड है उसमें 0 टू इनफाइनाइट स्पीड के सारे कंपोनेंट उसके अंदर होने चाहिए, वो भी सेम इंटेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड के साथ। सो दिस इज द फूरियर सीरीज ऑफ ए इंपल्स ट्रेन, है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फूरियर सीरीज, है ना। जस्ट फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया और देखा कि ये क्या बताती है।